So, guys, of late, I've been receiving a lot of messages and WhatsApps. One of the book I had recommended, people really liked it. Uh, I thought of sharing more recommendations. And certainly, I also, I very fondly remember the reason I started reading books is because my mentors recommended me. Just few books from my shelf, and if you like it, what I've done is I have taken four genres and two books each from each genre, so that whatever book is available at good price, you can buy that. So the first book that I would like to recommend is probably first genre which I'm going to talk about is about attitude life and sports business, sports companies, and learning from athletes, learning from the game of cricket, and of course, who better than Harsha Bogle? So Harsha Bogle, I hope you all know that he's the only guy who appeared in Bermudas in the interview in IIM Ahmedabad, which is the most premium B school in India. So he's written two books. One fundamentally is a collection of his articles which he had written on various games and various anecdotes that he has talked about. These are the two books which have been written by Harsha Bogle, and I specifically recommend reading this one, which is called The Winning Way. यार अब सीए की बात करो, सीएस की बात करो, दोनों ही एग्जाम्स इतनी टफ हैं कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द राइट एटीट्यूड फॉर थिंग्स. So in this book, he talks about learning from sports, uh, and what he does is he compares a lot of situations in the sports and very similar situations in the sports and the management side of the companies. So very interesting read. One of the if you'll see, actually I've highlighted a lot of points from this, and in the class I have talked about this, and a few of the people who have bought this, they really appreciated that this was a good recommendation, they said. So this is one must buys, whether you are in CSET, CA Foundation, CS Executive, CS CA Inter, जिस भी sphere में हो. This is a book which specifically will help you develop your attitude. क्योंकि अगर कोई डिफिकल्ट एम्बिशन है आपकी, इफ यू आर एम्बिशियस, अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, तो नेचुरली देयर विल बी लॉट ऑफ बैटरी डाउन मोमेंट्स बहुत सारी होंगी, एंड यू विल हैव टू back yourself until you become successful. Nobody's going to back you up. You have to back yourself. So this is a very interesting read. The name of the chapter is number one, The Business of Winning. So it talks about Cadbury, HUL, various examples of how Australian teams play the Test cricket. So one of the things that I'm not going to review the entire book because that will spoil the. So spoiler नहीं देना मुझे. But yes, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में क्या कॉमन बात है, जो कुछ कुछ टीम्स थी जो टेस्ट क्रिकेट और 50-50 बहुत अच्छा खेलती थी, बट 2020 में नहीं खेल पाई. बहुत सारे प्लेयर्स 2020 अडेप्ट नहीं कर पाए. तो HUL में और क्रिकेट टीम्स में क्या कॉमन है, वाई in the game of cricket and in the management side of the business, why there are similarities. So because sports, maybe it's about violent bodies and calm minds, because the other way the way around, if you have a violent mind and calm body, it will not work out. So very, very, very interesting read, from tennis, from cricket. Amazing book. You should certainly buy this. And specifically, one thing that you will love in this book is when he talks about page number 83, The Burden of Winning. So I thought it really gives my attention. तो ये मुझे अच्छी लगी काफ़ी. ये वाला चैप्टर का बहुत अच्छा है. Then specific example that I really loved, and I have talked about it in the classes. Page number 32. Please, if you buy this, please highlight this. So organizations have certain body language. For example, Reliance's big brush scale of operations is mind-boggling. The Tatas are firm, understated, classy. Infosys is honest and open, and goes on and on and on. And he says that you don't expect Mukesh Ambani to think small either, and his ambition of building the world's largest refinery has not surprised anyone. So post, again, Jio and retail, similar thought process. So the company's tagline is growth is life. His both sons are Anant and Akash. Again, the meaning, no endings. And again, in page number 33, he says, sport is about calm minds, violent bodies. Very interesting read. Anyway, so this is certainly one must buys. Mostly you will get it in Amazon, and
if you get it, please do buy this. This is for everyone. This can be bought by anyone and everyone, especially if you're facing any trouble. Please do buy this. It's a very interesting read. Then the second genre that I've chosen is hardcore law books. These two books, again, one is by Indu Bhan, which is about the dramatic decade and talks about 12-13 cases. यहाँ पे भी आपको 10-12 जजमेंट्स इंडिया के मिलेंगे, 12-13 इंडिया के जजमेंट्स हैं इसमें. And this is again, this I have recommended a lot. This is 10 judgments which changed India by Zia Modi. Zia Modi, you know that she runs the show in AZB and Partners, which is one of the biggest corporate law firms in India, specifically in competition law and mergers and acquisitions. AZB is the firm which everybody looks up to these days. This is by one of the editor and law reporter, who is Indu Bhan. So let me just brief you on these two books and why you should read this. Let me just open the first one. Which are the 10 cases this book talks about? The first one is about His Holiness Keshavanandan Bharti, and you all know how Keshavanandan Bharti case has changed India. So very interesting on how things are and why we should always respect the Supreme Court and the judges, because they have stood for us in the times that nobody would have dared to do that. Then you have Menaka Gandhi case, again on one of the fundamental rights. Then you have Shah Banu Begum case, which is about uniform civil code. These are the issues, अभी आप देखोगे क्रिमिनल जस्टिस वो क्या बोलते हैं, वोक रहना जरूरी है. तो दिस इज वेरी कन्वेंशनली रिटन स्टफ, थोड़ा technical language का भी यूज है, but I think you guys will love it. Then you have the second generation rights, so Bombay Municipal Corporation case. I have not actually read it personally. Then Union Carbide case, which is about the tragedy that happened in Bhopal, and because of which we have Public Liability Insurance Act, and the pollution laws in India changed because of one Bhopal gas tragedy. Then we have the case on reservations. Usually what happens is, what I've seen is, when there are debates or competitions, people, they don't have rational thoughts on reservations. So this is a case you should really read. Then you have death in police custody, death in the custody, and the right of people who are in detention. Then you have Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. This is again something that I have not read. So this is quoting the liberty, independence of the judiciary. I have not read. I would read this particular chapter also. Then you have the Vishaka judgment. Now naturally, we all know that in India, the new law which is called as POSH, which is Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace. So we only had law since 2013, है ना? So Prevention of Sexual Harassment Act 2013-14 का कानून है. इसके पहले we never had a law. So this is the Vishaka judgment, the landmark ruling on prevention of sexual harassment in India. So we all know what happened in Rajasthan and how important it was to come up with such laws. So Vishaka judgment इसमें पूरा दिया हुआ है. And actually, I don't know why this case was fought under Vishaka ruling, but I have very interesting stuff to share on this. In astrology, we always say whenever Jupiter is in Vishaka Nakshatra, you will see cases of sexual harassments. And again, Me Too movement, when it came in, Jupiter was in Vishaka, and anyway, it was fought under the Vishaka banner, and hence it is called as the Vishaka judgment. This is on prevention of sexual harassment of women. So till the time India had a full-fledged law on this, Vishaka guidelines by Supreme Court was followed in India. So this is very interesting, and the last chapter is on the euthanasia, and you might have seen that movie with Hrithik Roshan, which is on this particular topic. So very interesting read, tightly written book. थोड़ा technical लग सकता है. अगर आप एग्जीक्यूटिव निपटा दिए हो, कर लिए हो, एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे दिया, आई मीन टू से, मतलब वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, बट अगर एग्जीक्यूटिव हो गया है तो दिस कैन बी बॉट, यू विल अंडरस्टैंड दिस. अगर आप थोड़ा डिबेट साइड में हो, जैसे हमारी एक बच्ची है प्राची, वो उसका तो इंस्टा हैंडल ही डिबेट क्वीन है, तो बहुत पता नहीं कितने उसने अवार्ड जीते हुए हैं.
So the other book by Indu Bhan is more on social issues, but अच्छा है कभी डिस्कशन करना हो किसी से, कभी ग्रुप में खड़े हो, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई डिस्कशन हो रहा है, तो इफ यू वांट टू बी वेल रेड ऑन द सोशल इश्यूज, so this consists of 13 cases. I think parliamentary attack, Nirbhaya case, a Delhi case which happened, then 2611 case, 60 hours of terror. Then we have Babri Masjid case in this. Then we have Upahar, जो दिल्ली में थिएटर में आग लग गई थी, उसके ऊपर भी केस है. Then we have a Nota case on this. So whenever the elections happen, Nota हमेशा आ जाता है, और कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने देखा हुआ है कि नोटा की वजह से इलेक्शंस हारते हैं लोग. Then we have 1993 Mumbai blast case, Black Friday. If you have not seen the movie Black Friday, cult classic by अनुराग कश्यप, देखना चाहिए, क्योंकि वो पहली इंडिया में डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत अमेजिंग तरीके से बनाई हुई है. एंड द बैकग्राउंड स्कोर बाय इंडियन ओशंस, लेजेंडरी है यार. तो अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज नहीं हुई थी पहले मूवी. ब्लैक फ्राइडे मूवी भी देख सकते, थोड़ी डार्क है, अगर नहीं पसंद है डार्क जॉनर तो मत देखो बोले. देन ऑन द ट्रांसजेंडर एजेंडा, यू शुड हैव द ओपिनियन LGBT कम्युनिटी, उसके ऊपर जो LGBT राइट्स हैं, decriminalization and 377. And then we have a bar dancers case. So this is more of the cases or the topics which are more glamorized or more talked about in general media. This is something that you'll find more in the law books. This is something that you find in newspapers. Anyway, whatever you find at a good price, buy any of them. Personally, I like this more because Zia Modi has written this, and Zia Modi का भी स्टोरी है यार. मतलब Zia Modi was the first lawyer जो बॉम्बे हाई कोर्ट में, of course उनके फादर भी, उनका लेगेसी भी है, बट इंटरेस्टिंग है दोनों. So this is law. Then the third, this I have already recommended, but I could not restrain because यार अगर आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, या आप इवन अगर आप MBA भी कर रहे हो, तो यार इंडिया में अगर आपको 20-30 कंपनी के बारे में पता चल जाता है अगर आप टाटास का बुक पढ़ लेते हो. So this is by my favorite author these days. I'm reading Dr. Shashank Shah, and Dr. Shashank Shah is very approachable. I in fact had a conversation with him, and he has been very kind, and I really like his approach. There are two books. Actually, this is the one which I had read first. This book is called as Win-Win Corporations. I usually don't share my कि मेरा content कहाँ से आ रहा होता है, because आप बोलते हो कि सर इतनी सारी कंपनी का कहाँ से पता होता है. So basically, this is the book which is amazingly written, and one thing for sure, if you read this book nicely, आपको Indian hotel से या ताज होटल से प्यार हो जाएगा. So even I was not very fond of traveling and going to specific hotels, but after this, I have my own agendas, and I would specifically visit few places, so Med Bhavan, and how Taj, how this expression Tajness has come in, and how Taj hotels, 26/11 का अटैक कैसे हैंडल हुआ था. One of the best books, I think must have है. और डॉक्टर शशांक शाह का जो राइटिंग का तरीका है वो मुझे तो बहुत इंट्रीगिंग, मुझे तो अच्छा लगता है काफ़ी. So if you want to read about the Tata companies, the Tata Group is the one which you should buy, which Dr. Shashank Shah only recommended me. I bought this one, and then he recommended that if you have loved this, you will also love this. So any of them, buy both of them. Dr. Shashank Shah का सब किताब ले लेना चाहिए. थर्ड आई थिंक वो किसी CSR पे लिख रहे हैं शायद, बट ये दोनों में से कोई भी जो मिल जाए जो अच्छा अवेलेबल हो, स्ट्रेट अवे जस्ट गो एंड बाय. अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है रीडिंग का, तो आप पहले हर्षा भोगले से शुरू करो, बिकॉज वो जनरल है, छोटी है, तो हो जाती है जल्दी. और जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, बुक खत्म करने के लिए मत पढ़िएगा. मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं एक किताब उठाता हूँ, मैं रोज पूरा पढ़ते रहता हूँ, ऐसा नहीं है. मुझे जब जो मन करता है, कभी एक कुछ करने को रहा नहीं है, बेसिकली कुछ हुआ नहीं, तो तब मैं कोई भी रैंडमली कोई किताब पढ़ लेता हूँ, कोई एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ फॉर फ्लेवर. अब कहीं ना कहीं क्या होता है, अब जैसे आप बोलोगे सर अभी CS और CA में ही इतनी किताबें कम है कि और पढ़ें, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, फ्लेवर आ जाता है इससे. अब जैसे आप दाल में दाल तड़का क्यों डालते हो, फ्लेवर के लिए ना. तो जो फ्लेवर मिसिंग होता है ना, हम क्योंकि सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, या फिर रेगुलेशन लॉ, हम क्या इतना टेक्स्ट बुक इतना पढ़ रहे होते हैं, जो एक्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है शायद हम लोग थोड़ा उससे दूर हो जाते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू रीड अबाउट कंपनीज, व्हेन यू रीड अबाउट how things are happening, it gives you a context. And I always say that
मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा 3 चीज पे फोकस करता हूँ. वन इज कंटेंट, द अदर थिंग इज कॉन्टेक्स्ट एंड इवेंचुअली क्लैरिटी इज समथिंग दैट कम्स अप. तो इफ कंटेंट इज किंग, कंटेक्स्ट इज किंगडम. तो कंटेक्स्ट ही पता नहीं होगा, मतलब कोई कंपनी में कुछ हुआ था उस वजह से शायद कोई कानून बनाया गया है, तो कंटेक्स्ट पता करने के लिए आपको ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए. And the last one, the last genre which probably I would recommend, this is probably I would suggest this to people who either are done with executive or inter, या तो जो बच्चे CS प्रोफेशनल में हैं या CA फाइनल में हैं, या जो इंटर्नशिप्स ज्वाइन करने वाले हैं, या फॉर दैट मैटर जो CS प्रोफेशनल पास कर गया है या फिर जो CA फाइनल भी पास कर गया है, जो स्पेसिफिकली इंटर्नशिप के लिए जाने वाला है या कंपनी ज्वाइन करने वाला है. These are the 2 books. Very, very, very interesting one. This one is specifically more recommended. This is called as Boards at Work by Ram Charan. So Boards at Work is one more book which I would suggest you to read. See यार, अगर आप CS बन गए हो तो probably in the first job itself you will join a boardroom and probably आप सीधे ही डायरेक्टर्स के साथ डील कर रहे होगे, तो sometimes you will not understand their thought process. तो डायरेक्टर्स कैसे सोचते हैं, हाउ दे रन द शो इन द कंपनी, उसके लिए ये बहुत अच्छी किताब है. आपको बहुत अच्छा कंटेक्स्ट मिलेगा इसमें. ऑल्सो फ्यू थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई टीचर्स इज, अब जैसे मैं आपको इसका चैप्टर बताता हूँ, आपको चैप्टर का नाम सुन के ही समझ में आ जाएगा. तो हाउ द बोर्ड शुड बी द कॉम्पिटिटिव वेपन फॉर द कंपनी एंड व्हाट बोर्ड शुड डू. तो अभी कई बार क्या होता है, वेंचर कैपिटल कोई कंपनी में पैसा लगाया है, अब कोई बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो आपकी कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए लगाया है, तो हम लोग हमेशा नॉमिनी डायरेक्टर को एज अ बर्डन देखते आए हैं. जबकि अगेन वन ऑफ माय प्रोफेसर्स ही रिसेंटली टोल्ड मी दैट द कंपनी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ने तुम्हारी कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट किया है, तो भाई वो मैकेंजी से या BCG कोई अच्छी बड़ी कंपनी का बड़ी कंसल्टिंग फॉर्म से आ रहा है एंड ही इज कमिंग विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो आप नॉमिनी डायरेक्टर्स का पोटेंशियल कितना यूज कर सकते हैं, और क्यों हम लोगों को शेयर होल्डर्स को बिल्कुल कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमको उनको वैल्यू उतनी ऑफर करनी चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स. मैं चैप्टर्स का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मुझे कोई चैप्टर का नाम बताता है तो मैं पढ़ लेता हूँ. सो दिस इज वर्किंग फॉर एंड विद द शेयर होल्डर्स. देन अगर आप नॉमिनेशन एंड अपन लोग नहीं 178 में पढ़ते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी. अब आप बोलते हो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी में मैं पूरी कथा बताता हूँ 4 घंटे की, तो आप बोलोगे 178 में तो कुछ लिखा नहीं है. तो वो यहाँ से आ रहा है भाई. एक्चुअल प्रैक्टिस जो कंपनी में फॉलो हो रही है, CEO को कैसे इवैल्यूएट करना, बोर्ड इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, फैंटास्टिक लिटरेचर ऑन दिस. देन देयर इज वन मोर चैप्टर, I don't know whether I have highlighted that or not. Yeah, this is the one. There's a specific mention in the last chapter which is taken by surprise, which is the case of Richard Tompkin. तो ये आप पढ़ सकते हो. इसके अलावा आपको ये भी पढ़ना चाहिए. अब जैसे सक्सेशन प्लानिंग है, मेरी एक स्टूडेंट है अक्षिता, आप शायद वो देखेगी ये वीडियो. अक्षिता चौबे एक तो लेजेंडरी है, वो उसने लॉ नागपुर से कंप्लीट किया था और फिर वो NLU भोपाल से LLM उसका हुआ. तो उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी भी शायद बना रही थी एंड काफ़ी अच्छा उसका कुछ चल रहा था. तो मतलब यूजुअली उसने क्वेश्चन किया था कि सर मैं क्या केस लूँ. मैंने कहा भाई रिसर्च टॉपिक लेना है तो आपको ऐसा टॉपिक लेना पड़ेगा जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो इंडिया में सक्सेशन प्लानिंग इज अ बिग इशू. आप देखोगे टाटाज, इंडिया की बेस्ट गवर्नड कंपनी है टाटाज, उसमें भी अगर आप देखोगे तो इतना इशू हुआ सक्सेशन में यार. सरस मिस्त्री को पहले आप अपॉइंट करते हो, पहले तो सिलेक्शन कमेटी में जो सिलेक्टर था ही बिकेम सिलेक्टी. आपको रतन टाटा का कोई मतलब सक्सेसर मिला नहीं, वो पहले आप उसको लेकर आ गए, आपने बोला कि तुम अपॉइंट हो जाओ, वो बेचारा हम्बल लोगे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद फिर उसको तुम रिमूव कर देते हो. सी यू ऑल नो माई ओपिनियन ऑन साइरस मिस्त्री एंड टाटा फियास्को. मेरे को मालूम है बोथ द पर्सन्स आर कमिंग फ्रॉम रिस्पेक्टेड फैमिलीज. द nobody was fighting for a piece of land. रतन टाटा, साइरस मिस्त्री बेचारे क्या उनकी अप्रोच में डिफरेंसेस थे. बट सक्सेशन हैज बीन अ प्रॉब्लम इन इंडिया. अभी नारायण मूर्ति 2011 ही रिटायर्ड. 2012 अगेन ही केम बैक. विशाल सिक्का जी को जब बाहर निकाला गया या प्रोबेबली उन्होंने छोड़ दिया, तो नारायण मूर्ति केम बैक अगेन, रिटायर होके वापस आए. अब आई एम अ बिग फैन ऑफ नारायण मूर्ति. अब तो इन्फोसिस में काम किया और उससे बेहतर कंपनी नहीं है. बट सक्सेशन ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में.
जैसे गोदरेज है, गोदरेज का बहुत अच्छा सक्सेशन प्लानिंग है, उन्होंने उनका एक ड्रॉप डेड पॉलिसी बना हुआ है। अगर गोदरेज के सब डायरेक्टर्स मर जाएंगे तो तुरंत उनके पास एक पूरी टीम तैयार है। तो सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर इसमें अच्छा चैप्टर है, आपको सेक्शन 178 पढ़ने का फ्लेवर आ जाएगा, मतलब आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। सो दिस इज वन बुक आई एक्चुअली गॉट लकी। यू हैव नो आइडिया कि मेरे पास बुक आई कहाँ से, तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। इसमें तो मेरे पास ऑथर की सिग्नेचर वाली बुक है। सो this one again has been written by 4 authors. This is called as Corporate Citizenship. CS Professional makes subject है corporate governance. सही बताऊं क्या, corporate governance में आपको अगर बहुत ओरिएंटेशन चाहिए, दिस अ बुक कैजुअल रीड दो, इसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, नॉवल की तरह इसको रीड करते जाओ, बट आपको बहुत अच्छा अप्रोच आ जाएगा। इसमें बहुत चैप्टर्स के नाम बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन, तो जो लेवाइस स्ट्रॉस आप जीन्स लेते पहले, तो मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लेवाइस जीन्स में एकदम पेटेंट होता था कि लेवाइस का ही जीन्स चल रहा होता था एक पॉइंट में। प्रोबेबली व्हेन वी वर इन ग्रेजुएशन लेवाइस का ही जीन्स लेते थे सब लोग। सो लेवाइस स्ट्रॉस है, देन वी हैव पीएनजी, नेस्ले, मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो ये कंपनीज में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देन डायलेमा के ऊपर, क्योंकि एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ या एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे एथिकल डायलेमास आएंगे, धर्म संकट वाली सिचुएशंस आएगी, तो उसमें कैसे डील करना बहुत इंटरेस्टिंग है। बार्कलेज, ब्रिटिश एयरवेज, मतलब अरे बहुत, मतलब आई तो गॉट वेरी लकी मैन। ये मुझे किताब क्या बताऊं मैं आपको, एट व्हाट बार्गेन आई हैव बॉट दिस बुक। सो दिस अगेन वन मोर बुक। एक्चुअली ये दो बुक्स ना बहुत महंगी है, तो अगर आपको दोनों में से जो मिल जाए अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए, दोनों में से कोई भी बाय कर लो। टू बिगिन विथ अच्छी जर्नी है। दिस आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल में हो तो ये लो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आपने अभी तक ज्यादा रीड नहीं करते, तो मैं भी बताऊंगा, मैं सीएस के बाद ही ज्यादा शुरू किया। 2008-9 में हमारे रोहित जैन सर मेरे को एक बुक गिफ्ट किए थे, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो मेरे को बुक रीड करने का आदत वहां से आया था। सो टू बिगिन विथ छोटा शुरुआत करो। मैं अभी एकदम चेतन भगत और रश्मि बंसल नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए। रश्मि बंसल तो ऑफकोर्स कनेक्ट द डॉट्स और विद द अदर वन स्टे हंग्री स्टे फुलिश तो पढ़ी ही होगी आपने, मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी तो वो भी ले लो। बट दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड, क्योंकि ये बुक में ना आपका एटीट्यूड ठीक हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैटरी डाउन मोमेंट सबके हो रहे होते हैं, एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट कैसे सीखना है। अब जैसे इसमें एक बैडमिंटन प्लेयर का स्टोरी है कि उसके पास सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद उसने अपना शहर छोड़ा, ट्रेनिंग करने दूसरे सिटी में गई, वहाँ पे वो बहुत सिंपल से रूम में रही एंड इवेंचुअली केम बैक एंड उसके बाद मेडल जीती इंडिया के लिए। सो वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सो थैंक यू गाइज। अगर इफ यू वांट मी टू सजेस्ट यू मोर थिंग्स, मुझे कोई बोल रहा है कि यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखाते हो क्लास में वो वाले बताओ। यार एक्चुअली वो मेरी एक हिडन प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब उसमें पता नहीं क्या क्या है, उसको पूरा ओपन करना थोड़ा ऑड है। तो अगर आपको कुछ और लग रहा होगा, जैसे मूवी रिकमेंडेशंस भी अगर आप बोलोगे तो आई कैन कम अप विद दैट। सो एनीथिंग दैट यू वांट वुड सर्टनली कम अप विद दोज वीडियोस। आज हम लोग एक्चुअली रिकॉर्ड कर ही रहे थे, तो बेसिकली तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, एंड इवेंचुअली आई थॉट दैट दिस इज पेंडिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। एंड पता नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडमली यार एक मैंने पोस्ट डाला था, तो वो फिर काफ़ी शेयर करवा दिया मतलब हमारे यहाँ पे सबने, बोला ये ठीक है, ये अच्छा है, बुक रिकमेंड करो आप। तो फिर आई थॉट व्हाई नॉट मेक वीडियोस ऑन दैट। सो एनीवे, दिस इज द recommendation video, the first recommendation video of mine. If you like it, please tell me by, how do I say, like, मैं तो like and subscribe बोलना नहीं होता ना, मैंने यूजुअली मैं like और subscribe बोलता नहीं हूँ, आपने देखा होगा। But if you like it, please do tell me that you're liking these videos, and और क्या क्या आपको चाहिए, कुछ और बुक्स का अगर चाहिए होगा कोई जॉनर का, तो certainly ask। मैं भी ऐसे बहुत ज़्यादा बुक रीड नहीं करने वाला हूँ, मतलब प्लीज़ मेरे बारे में वैसा गीकी ओपिनियन मत बनाइए। मैं बुक्स ले लेता हूँ और जब मेरा मन करता है तब मैं पढ़ता हूँ, बट मैं कभी कभी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं एकदम गीकी नहीं हूँ कि किताब लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है मेरे साथ भी। तो आई एम वन ऑफ यू गाइज मतलब मुझे कम्प्लीटली मालूम है कि कितना डिफिकल्ट होता है फोकस करना। तो ये ऐसी किताबें हैं जो आपका फोकस बन जाएगा खुद ही। एनीवे, इट्स गेटिंग टू लॉन्ग। थैंक यू गाइज, बाय।